یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع رامپور کے پٹی کلا گاؤں میں، جہاں 21 دسمبر 2016 کو سماجوادی پارٹی کے 34 ودھان سبھا سوار ٹانڈا سے پرتیاشی جناب عبداللہ اعظم خان صاحب نے مشن 2017 کے تحت ایک وشال چناوی جن سبھا کو سمبودھت کیا۔ اس موقع پر پٹی کلا گاؤں کے لوگوں نے جناب عبداللہ اعظم خان صاحب کا تاریخی استقبال کیا۔ جناب عبداللہ اعظم خان صاحب اتر پردیش سرکار کے قداور منتری جناب اعظم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اس وشال چناوی جن سبھا کے آرگنائزر رہے جناب محمد حسین صاحب اور ان کے بھائی جناب اکرم پہلوان صاحب۔ اس وشال جن سبھا کو جن کی نگرانی میں آیوجت کیا گیا ان لوگوں کے نام ہیں جناب اسلام بلی صاحب سدسیہ ضلع پنچایت، جناب حاجی عابد حسین صاحب، جناب فہیم پہلوان صاحب اور مشہور شاعر جناب خالد سلطان پوری صاحب۔ نظامت کے فرائض انجام دیے ایڈوکیٹ جناب تکمیل احمد صاحب نے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کا خاص ویڈیو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ جناب خالد سلطان پوری صاحب۔ بہت لمبی فہرست ہے، مقررین بہت زیادہ ہے، وقت ٹھنڈ کا ہے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں اس پروگرام کو اور معذرت چاہوں گا ان سبھی حضرات سے جو اس دائس پر بولنے کے منتظر تھے۔ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے، کھانے کا بھی وقت ہے، ٹھنڈ کا بھی وقت ہے۔ میں جناب حامد گولڈن صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بہت ہی مختصر انداز میں اپنی بات کا اظہار کریں۔ آج کی سبھا کے خاص مہمان سماجوادی پارٹی سے پرتیاشی میرے اور آپ کے سب کے بھائی عبداللہ اعظم خان صاحب سنچالن کر رہے، میرے بھائی تکمیل وکیل صاحب اس پروگرام میں بے انتہا جان ڈالنے والے اور ٹنوں کے حساب سے پھول بکھیرنے والے میرے بھائی حسین صاحب، اکرم صاحب، پروی صاحب، انہی کے والد اور میرے بھی والد حاجی جی، جفر وکیل صاحب، گنا سمیتی کے چیئرمین جاہد صاحب، افسر خان صاحب، ہمارے بزرگ فرجن پردھان صاحب، سجاد خان صاحب، ندیم صاحب، منسی گنج کے پردھان عارف صاحب، نرپت نگر کے پردھان مقصود صاحب، رامپور سے آئے ہوئے مجے ہوئے اور بہت ہی سنجیدہ ایک عجیب ٹیم، جس ٹیم سے زیادہ دیہاتی خوش رہنے والے میرے بھائی گڈو صاحب، سانو صاحب، وسیم صاحب اور بھی بہت لوگ ایسے ہیں جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور بہت زیادہ فکر چناؤ کی رکھنے والے اور دیہات والوں سے پیار کرنے والے میرے بھائی انوار صاحب، ناصر سلطان صاحب، رتن پورہ کے پردھان رئیس صاحب۔ پروگرام کو شارٹ کرنے کے لیے کیا ہے اور میرا دل چاہ رہا کہ میں سب کے نام لوں۔ رجا نگر کے پردھان افسر علی صاحب، بسواسی کے چیئرمین پد کے لڑ بھی چکے ہیں امیدوار محمد احمد ملا جی صاحب، وہ منچ پر کھڑے ضلع میں اپنی الگ پہچان رکھنے والے میرے بھائی فہیم پہلوان صاحب ہیں بھی الگ انشاءاللہ میری برابر میں کھڑے ہیں، اور
सूझ बूझ रखने वाले और काफी खतरों से खेलने वाले और काफी संजीदगी रखने वाले मेरे भाई फरज साहब, मेरे गुरु, और बहुत ज्यादा नीचे से बहुत ऊपर तक पहुंचने वाले मेरे भाई इस्लाम बल्ली साहब, वह इस गांव के, रामपुर के और चंद गांव के नहीं बल्कि काफी गांव के आए हुए और स्वार के सभी सम्मानित बुजुर्ग व नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी का दिन है। जिस टाइम अब्दुल्ला आजम साहब का काफिला स्वार आया और स्वार से जब बिजार खाते पहुंचा, शायद मेरी गाड़ी बहुत पीछे होगी, लेकिन जिस टाइम फूलों की बरसात और वो लोग जो इनके साथ शामिल थे और जो इस गांव के लोग अब्दुल्ला साहब को लेने के लिए गए थे, तो उस टाइम मेरा भी रुआ खड़ा था, जैसे रुआ खड़ा था, और एक अजीब सा हिसाब दिल मेरा अपना ये कर रहा था कि मैं गाड़ी से निकलूं और मेरे खानदान में भले ही कोई नहीं नाचा है, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं कूदूं इनके साथ। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उन सबका जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में जान डाली, और सबसे ज्यादा मैं हुसैन साहब का दिल की गहराइयों से, अब्दुल्ला साहब और समाजवादी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से, सच्ची गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और शुक्रिया अदा करने के साथ इस शुक्रिया अदा का, हुसैन साहब मेरी बात भूलनी होगी, थोड़ी धुलने की बात है, इस प्रोग्राम का मजा इस इलाके के लोगों से जिन्होंने स्वागत किया है, इसका मजा जब आएगा, क्योंकि ये उत्तरांचल का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। जब शुरुआत ऐसी होती है तो आखिर होती है यहां से गिनती में, या शुरुआत होती है, लेकिन इस प्रोग्राम का असर, इस प्रोग्राम की सब में ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन किसी और की बोनी नहीं होगी। यहां से प्रोग्राम की खुशी, जैसा प्रोग्राम किया अजीज साथियों, तुमने सही चुना है, जैसा तुमने प्रोग्राम किया इसी तरीके से सिर्फ हर आदमी ये सोच रहा है कि अब्दुल्ला आजम मेरा भाई है, उम्र में ज्यादा है तो अब तो सोच रहा अब्दुल्ला आजम मेरा बेटा है, मेरा भतीजा। ये जुनून होना चाहिए, और इस एरिया में नहीं बल्कि हम तो अपने एरिया की बात करते हैं कि वहां किसी पार्टी का अल्लाह के हुक्म से किसी का झंडा और बैनर कोई लगाने तैयार है ही नहीं, और लगाएगा नहीं लगना चाहिए इस बॉर्डर पर भी, बिल्कुल किसी का झंडा नहीं लगना चाहिए, किसी का झंडा नहीं लगना चाहिए। खुद विधायक का खुद का अब ये कहना है, खुद का विधायक का ये कहना, जो यहाँ 5 बार और 4 बार विधायक रह गया, वो खुद ये कहता है कि अब तो खुद पर भी एतबार नहीं, अब तो खुद पर भी एतबार नहीं, जिंदगी से भी मुझे प्यार नहीं, और तूने ठुकरा दिया। कहते हैं नहीं कि अब तो खुद पर भी एतबार नहीं, जिंदगी से मुझे प्यार नहीं, और भूले से भी कभी तू मुझे प्यार करे। ये स्वाद टांडे के लोगों, भूले से भी कभी तुम मुझे प्यार करो, मुझे इसका भी एतबार नहीं, तो क्या अब भी एतबार रहेगा तुझे? कोई खुद जानता हो, कोई एतबार नहीं उसे। अपने भाई को इस तरीके से बोल दो। और हमारे पास टीम की बात ये बैठे राजा साहब, जो उनके प्रतिनिधि होते थे, सारे काम करते थे। वो फरज साहब है जो बहुत दिमाग दौड़ाते थे लिखत पढ़त में, और वो फहीम पहलवान है, वो नाइक खान है जो हिसाब बनाते थे, यही रह जाते थे। और ये थोड़े से लोग बहुत लोगों को बैल लगा लेते थे, क्योंकि ये रीढ़ है, ये जानते हैं चुनाव लड़ाना अल्लाह के हुक्म की बात है। ये लोग यहाँ आ गए, लेकिन ये लोग बेवकूफ नहीं है, ये लोग ये देखते हैं कि हम पहले कहां थे और अब चुनाव लड़ कौन रहा, और चुनाव लड़ा कब उसे प्रत्याशी मिला कब है। वो जो कहता था ना कि मेरे अभी उनके लोगों का, कुछ का चंद लोगों का कहना यह है, ये गलत फहमी दिमाग में मत डालना। उनका कहना यह है कि 42,000 वोट तो हमें जब आ गए थे। अरे 42,000 वोट तुम्हें जब आ गए थे, मोहब्बत का भूत उतरते उतरते उतरता असली बात पता लगे विधायक जी, बोली नहीं बल्कि जमानत जब्ती होगी कांग्रेस जैसा, जिसका नाम नहीं है, वो तुमसे आगे निकल जाएगी। तुम्हारा और हमारा चुनाव ही का है, कोई चुनाव नहीं है तुम्हारा। और ये मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं, एक बात कही थी नसीर खान साहब ने कि एक विधायक है चबरवा विधानसभा के, कि वो बार बार बिरादरी का गाना गाते, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बिरादरी के लोगों को मिलवाने मुझे को तुरंत मुझे ज्यादा मिलेंगे, वो मुझे मिलेंगे। अब मैं ये दावा कर रहा हूं कि एक ये शख्स है जो तुम्हारे सामने बैठा, तुम्हारा प्रत्याशी, कहते हैं कि हर चीज मुरादों की होती है, कोई लड़का नहीं होता, तो कभी अजमेर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग इतना कुट पिस चुके थे कि हम लोगों ने 1 साल पहले सब बैठे ये मन बना लिया था कि चाहे पिट जाए आजम खां से हम, लेकिन कोई भी सूरत बने किसी सूरत से अब्दुल्ला आजम को लियो, क्योंकि इस पागल को भी वोट ढाई सकता। और दूसरा ये, हमें तो विकास की जरूरत है, हमें लालच। अब्दुल्ला साहब, हमें उम्मीदें हैं तुमसे वोट, और ये मेरा अंदर का दिल कहता
कि हमारी वो उम्मीदें खरी होंगी, क्योंकि आप उस नस्ल में से हो, उस बाप की आप औलाद हो जिस पर सब करना गुनाह है, गुनाह अजीम है। तो इस मौके को एक सेकंड नहीं छोड़ना किसी को, कोई भाई का लाल है किसी भी बिरादरी का हो, एक मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता। रहती है हिंदुओं की बात, क्या कोई माई का लाल ये सोच सकता था पूरे उत्तर प्रदेश में कि लाखन सिंह जिला पंचायत चेयरमैन होंगे? सिर्फ आजम खां की देन थी। और एक बात और सुन लो, यहाँ अगर कोई 100 बोरी ढोगा तो 100 की मजदूरी मिलती है भाई, 2 ढोगा 2 की मिलेगी, दिखावा नहीं, कोई फर्क नहीं। और मैंने पहले भी कई बार कह दिया कि तुम एक चीज को और गौर से ध्यान से देखो, मैंने कई जगह देखे कि अगर कोई विधायक बन गया गलती से 150 वोटों से, और उसका रिश्तेदार सगा तो दूर है, कोई रिश्तेदार हुआ तो उनने बैंक नहीं छोड़ी है खेत की, रोड खोल दिया हमने कि जनता में विधायक का भाई हूं। लेकिन एक भी आदमी इस पूरे मजमे में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक आदमी ये कह रहे कि आजम खां साहब को पूरी दुनिया जानती है, कितना असरदार नेता है वो, लेकिन उसके बाद उसी शख्स का सगा बेटा होने के बाद कोई आदमी एहसास कर सकता है कि उस आदमी की गाड़ी तेज निकल गई, या उस आदमी ने कभी गुमान तकब्बुर की बात करी? फांस के रखो अब्दुल्ला आजम साहब को, और इतने वोटों से जिताओ जो बिल्कुल चैन छोड़ने के बाद आजम खां के साहब के सामने जाओ। अब्दुल्ला साहब, हमने आपके ऊपर इतना बड़ा यकीन किया है, इतना बड़ा यकीन किया कि हमने सारी पार्टियों की जमानत जब्त कर दी। अब हमें कुछ मालूम नहीं, अब्दुल्ला साहब हमें अपना स्वाद देना रामपुर जैसा चाहिए, तब मजा आया देने में। साथियों, टाइम भी बहुत कम मिला है मुझे, और आप जानते हो टाइम भी काफी हो गया, और हैबिट है मुझे काफी देर बोल लेता हूं, लेकिन मैं अब्दुल्ला साहब की बातें बड़ी ध्यान से सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि चेहरा छलकता मेरे उस उस्ताद का, उस नेता का जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं, और आप आजम खां, और मैं बड़े ध्यान से बातें सुनता हूं। अजीज साथियों, बहकाने में, धोखे में कहीं नहीं आना, हमें इतना दबाव बनकर रखना। मैंने कह दिया आजम खां साहब से भी, मन की बस मेरी दुआ यह है कि 2-4 वोट हम पर तुम्हारी जीत के हिसाब से कम रह जाओ, क्योंकि आप बड़े हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर ज्यादा वोटों से जीते तो हमारी चबरों विधानसभा की सीट, रामपुर सीट और स्वार सीट इतने वोटों से जीत जाए जो चैनलों पर जब देखें तो हमारा खून बढ़ जाए। साथियों, तुमसे यह उम्मीद करूंगा, कहते हैं कि खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत, खुदा नसीब करे तुझको इस कदर शोहरत के तेरे नाम के आगे किसी का नाम ना हो, और कहते हैं तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, इतना बढ़िया प्रोग्राम गांव में कराने के लिए मैं फिर से इस्लाम साहब, भाई फराज साहब, फहीम साहब, नाइब खां साहब और उन सब का, और खासतौर से हुसैन का और हुसैन के भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हामिद गोल्डन साहब, युवा समाजवादी नेता, बहुत ही जज्बाती तकरीर करते हैं, खुद पसीने में नहा जाते हैं, लेकिन सुनने वालों को मजा आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सियासी जलसे कवर करें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं मुशायरा करा रहे हैं तो मुशायरे की कवरेज कराना चाहते हैं तो वो भी हम कवर करते ही हैं। जी हाँ, हमारी वेबसाइट है mushairalive.com, हमारा व्हाट्सएप और कांटेक्ट नंबर है 9997640286। मुझे इजाजत दीजिए। शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।